آزادی 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 کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، ہے حق ہمارا ہم لے کے رہیں گے، ہر بچہ بولے ہر بوڑھا بولے کشمیری بولے ہائی آئی، کشمیر بنے گا پاکستان، ٹوٹیں گے پنجرے چھوٹیں گے پنچھی، خون شودا ہر دعا رنگ لائے لائے لائے، غاصب دشمن چھوڑے گا گلشن، اب ہوگی صبح آزادی، کر لو گھیراؤ ڈنڈے برساؤ، قیدی بناؤ گن چلاؤ ظلم ڈھاؤ، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال۔ آپ لوگوں نے کشمیریوں کی آواز کو زندہ رکھا ہے، آپ لوگ اس بات کے مستحق ہیں کہ آپ کو مبارکباد دی جائے کہ آج بھی آپ ان کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اقوام متحدہ کو یورپ کے ساتھ ہونے والی تھوڑی سی زیادتی بھی نظر آ جاتی ہے، لیکن مسلمان قوم کے ساتھ ہونے والے یہ مظالم اس کو نظر نہیں آتے۔ پاکستان میں سب سے توانا آواز حافظ محمد سعید صاحب، جن کی آواز کو قربان سراست کر دیا گیا ہے، وہ پوری دنیا میں آج گونج رہی ہے کہ کشمیریوں تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، انشاءاللہ آزادی کشمیر تک تمہارے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ قرآن کریم کے اوراق جلا کر اپنی کامیابی سمجھتے ہو، یاد رکھو قرآن کی اصل جگہ ہمارا دل ہے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن کی اصل جگہ یہ ہے۔ تو ہم قرآن کے تحفظ کے لیے ہر مسلمان اپنا سینہ پیش کرنے کو تیار ہے، بتاؤ کتنے سینے چاہیے؟ جس طرح ہم اپنا سینہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، اسی طرح ہم شعائر اسلام کے تحفظ کے لیے تمہارے سینے بھی چھلنی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کرنے کے مواقع فراہم کیے جائیں تو ہمیں جنگ نہیں کرنا پڑے گی، صرف وہاں پہنچنے پر ہی آزادی مل سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الواحد القہار، والصلاة والسلام علی سید الابرار وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ الاطہار۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد۔ آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے اندر بالخصوص اور اس کے علاوہ بہت سارے ممالک کے اندر کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے حوالے سے منایا جا رہا ہے۔ کشمیری وہ مظلوم قوم ہے کہ جنہوں نے 75 سالوں سے اس آزادی کی جدوجہد کے لیے اپنی لاکھوں قربانیاں پیش کی ہیں، اور اس قربانی کے نتیجے میں ماؤں کی عصمت دریا ہوئی، بہنوں کی عزتیں لوٹی گئیں، نوجوانوں نے اپنا مستقبل، باپوں نے اپنے بڑھاپے کے سہاروں کو پیش کیا۔ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ان ماؤں کو جنہوں نے اپنی آنکھوں کے تارے، اور ان بہنوں نے جنہوں نے اپنے جگر گوشوں کو، اور ان بزرگ والدین کو جنہوں نے اپنے بڑھاپے کے سہاروں کو اس آزادی کشمیر کے لیے قربان کیا، اور اس کے اوپر پوری دنیا خاموش ہے کہ کشمیری اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور وہ ہندوستان آئے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، لیکن اس کے اوپر
पूरी अक़वाम मुत्तहिदा, पूरी दुनिया खामोश है। ये बड़े सदमे की बात है कि कश्मीरी वो कौम है कि जिन्होंने कलमे की बुनियाद पर और अपने इस खित्ते को आज़ादी के लिए, आज़ादी के हसूल के लिए अपनी कुर्बानियाँ पेश की। मैं आज पाकिस्तान के हुक्मरानों को और गयूर अवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कश्मीरी वो कौम है कि जिनके साथ हमारा रूहानी ताल्लुक है। कश्मीरी वो कौम है कि जिन्होंने एक अजान के नतीजे में 22 लोगों की कुर्बानियाँ पेश की। अल्लाह अकबर कहा, गोली आई, शहीद हो गया। दूसरे ने आके अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, शहीद हो गया। अल्लाह की कसम, ये वो कौम है कि जिन्होंने इस आज़ादी के हुसूल के लिए अपने मुस्तकबिल को दांव पे लगा दिया, इस आज़ादी के हुसूल के लिए अपनी कुर्बानियों को बेच दिया। लेकिन हमारी सिर्फ और सिर्फ इस हद तक आवाज उठती है कि हम मुसम्मत करके अपनी बात को खत्म कर देते हैं। 5 फरवरी के दिन हम इस यकजहती कश्मीर के हवाले से बनाकर अपने उन कश्मीरी भाइयों को भूल जाते हैं जिनकी सुबह और शामें इस नारे के ऊपर गुजरती है कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह की कसम, बुजुर्ग तो बुजुर्ग है, माए तो माए है, ताजर बिरादरी वो अपनी जगह पर। लेकिन मैं एक नौजवान इस मासूम बच्चे की बात करता हूं जिसकी एक शायद 16-17 साल होगी। वो एक इस आजादी के काफले के अंदर, इस तहरीक के अंदर, इस एक रैली के अंदर शरीक है, जो पाकिस्तान का परचम उठा के नारे लगा रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक हिंदू आर्मी के नौजवान ने उसको पकड़ा और गाड़ी के अंदर ले गया और उसके सीने के ऊपर गन रखी, कहा आप बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह की कसम, उस बच्चे को पता था 1 सेकंड के अंदर मेरी छाती को एक ब्रश ने चीर देना है, लेकिन उसने पता क्या कहा, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। ये वो कौम है जो मेरे मोहतरम भाइयों नजरियाती तौर पर आजाद हो चुकी है और जुगराफियाई लिहाज पर आजाद कराने के लिए वो पाकिस्तानियों को देख रही है। और इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला जाता है। किसी जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और हुर्मत के ऊपर डाके डाले जाते हैं, कहीं कुरान मजीद को जलाकर मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला जाता है। मैं आज इस खानेवाल के प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से ये पैगाम देना चाहता हूं कि इस जुल्म और सितम को बंद किया जाए और इस बेहुरमती को बंद किया जाए। अल्लाह की कसम, वो वक्त आएगा जब पूरी दुनिया के ऊपर कलमे, पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम का परचम लहराएगा और अमनो अमान होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह के पाकिस्तान को दिवालिया करने के कई खड़ा करके इस कौम को कहीं आगे के लिए लाइनों में खड़ा कर दिया गया है। इस कौम को कहीं डालर करके दिवालिया करने के लिए इस मुल्क को डराया जा रहा है। ये मेरा मुल्क है, ला इलाहा इल्लल्लाह का मुल्क है, ये मेरे असलाफ का मुल्क है, ये दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह की कुर्बानियों से बना मुल्क है, ये हज़रत मीर
पार्लियामेंट में आवाज बुलंद होगी। कश्मीरियों के लिए हाथ बुलंद करके वादा करो, अज़म करो, इस पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आवाज बुलंद होगी। कश्मीरियों के लिए, फलस्तीनियों के लिए इस पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इंशाअल्लाह जहां किताब और सुन्नत का कानून अमल में लाया जाएगा, वहां इंशाअल्लाह हुर्मत कुरान का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा, नामूस रिसालत का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा, साहब अहले बैत नामवर मुक़द्दस शख्सियत का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा और इंशाअल्लाह मुल्क पाकिस्तान पूरी उम्मत का इंशाअल्लाह सलार पाकिस्तान बनेगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आज कश्मीर के हवाले से हम उनकी मोहब्बत के साथ एक दिन तो मनाते हैं, जिस तरह मेरे वालिद एहतराम भाई ने बताया 30 साल से ज़्यादा अरसा पहले काजी हुसैन अहमद अल्लाह उन पे करोड़ रहमत करे, उन्होंने ये दिन का आगाज़ किया। फिर इस मुल्क के अंदर 5 फरवरी के हवाले से छुट्टी का ऐलान भी किया गया। हक़ीक़त ये है कि आज 19 से लेकर 23 पर आप खड़े हैं, 1200 से ज़्यादा दिन गुजर गए हैं। कश्मीर के अंदर कर्फ्यू की दुनिया चल रही है। मैं इस पर बात कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक दो बातें जो अपने हवाले से अर्ज़ करता हूँ, जिसके साथ पूरी दुनिया के अंदर शर्म के साथ हमारे सर झुके हुए हैं। आज दुनिया के सामने जिस वक़्त मैं कश्मीर की बेटी का तज़किरा करूँगा, उसके लुट जाने का तज़किरा करूँगा, शायद ये सवाल भी मेरे सामने आएगा कि रात होने वाला इस्लामाबाद के अंदर कोई आधी रात पर नहीं, किसी गांव दही इलाके के अंदर नहीं, जंगलात के अंदर नहीं, जो हमारा दरारुल खिलाफा इस्लामाबाद के नाम पर है, एक बेटी अगर वो घर से निकलती है और 8 बजे दरिंदगी का शिकार हो जाती है। आज अगर हम मुल्क के अंदर ये देखते हैं कि दुनिया के अंदर हम बात करने के साथ, जैसे मेरे भाइयों ने कैदीन ने तज़किरा किया कि आज पेशावर में होने वाला वाक़या, जहाँ पर कत्ल होने वाला भी कलमा पढ़ने वाला हो और कत्ल करने वाला भी कलमा पढ़ने वाला हो, आज दुनिया के अंदर जिस वक़्त हम देखते हैं कि आज इस कैफियत हालत से गुजरते हुए मैं अगर ये समझूं कि कश्मीर के हवाले से अगयार ने नहीं, दूसरों को क्या इस बात पे शिकवा करो कि आज मुल्क के अंदर किताबुल्लाह की तलावत करते हुए वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह पढ़ते हुए भी अगर आदमी ये सोचे कि यार अगर मैंने ये बात की तो देखिए ये जिहाद के खाते के अंदर ये बात आएगी, दुनिया कुफर क्या सोचेगा। दुनिया की वो जलील कौमें, वो किसी कंपनी के नाम पर कभी बड़े सगीर के अंदर, कभी उन्होंने हमारे घेरे FATF के नाम पर, कभी IMF के नाम पर, वो देखिए सारी दरिंदगी वही है। फिर माजरत के साथ मैं तो हुक्मरानों से ना दरख्वास्त का कायल हूँ, ना किसी से दुनिया के अंदर अपने अल्लाह के अलावा मैं अपील का कायल हूँ। अगर हम इसी बात पर ही सोचते रहते, इसी दरवाजे का इंतज़ार करते, वो रशिया की शक्ल के अंदर जो इसी पाकिस्तान के लिए आए थे, शायद उनका इलाज ना हो सकता। जो दुनिया के अंदर इत्तेहादियों की शक्ल के अंदर आए थे, शायद उनका इलाज ना हो सकता। मैं कश्मीर पर बात करने से पहले बिलखसूस स्टेज पर बैठने वाले वो सियासी या मजहबी क़यादत के लोग हो,
जो मर्दी दुनिया के अंदर पैगाम दे लो। जिस वक्त देखे जो मसला है हमारे मुल्क के अंदर, आज 3 चीज़ों पर सबसे पहले हमें मसल की तौर पर, मजहबी तौर पर तकसीम किया गया। और तकसीम होने वाला कौन, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं देता, मैं भी इसका हिस्सा बना। और उन्होंने मजहब के नाम पर जो कुछ दुनिया के मुसलमानों के मुल्कों के अंदर हुआ, और देखिए उसके साथ वो मजहब का मसला तो अपनी जगह पर, वो लोग जो उलमा को मौलवी कह के कि इनके मसले हैं, आज देखिए उससे बहुत आगे सियासत की दुनिया के अंदर जो खलीज है, आज देखिए नफरतों की दुनिया तो इसके सियासत के नाम पर, अगर कत्ल की दुनिया तो सियासत के नाम पर, एक दूसरे के बारे में वीडियो जारी करना तो सियासत के नाम पर, हर रोज नफरत की जगह पर वो देखिए वो बढ़ती जा रही है। फिर देखिए किसका कितना वो देखिए इस बात के अंदर कसूर है। मैं किसी पर इल्जाम देने से पहले मेरा सिर्फ ये सवाल है, वो मसला फौज और आवाम के अंदर दूरी का हो, वो मसला मसला की बुनियाद पर हो, वो मसला सियासत की बुनियाद पर हो। जिस वक्त कलमा पढ़ने वाले वो देखे इत्तेहाद की दुनिया के अंदर नहीं आएंगे, दुनिया कुफर भी हमसे यही चाहता है कि हमें किसी तरह से तकसीम कर दिया जाए, और उसके साथ फिर वो दुनिया के अंदर वो दरिंदगी की दुनिया के अंदर जिए, वो मुसलमानों का कत्ल करे, वो मुसलमानों की इस्मतों को बर्बाद करे, वो किताबुल्लाह की बेहुरमती करे, वो मेरे नबी के हक के शह किए, वो सारा कुछ उन्होंने बाद में किया, सबसे पहले हमें तकसीम किया। अब फिर से जरूरत इस बात की है कि कलमा पढ़ने वाले वो कलमे की बुनियाद पर वो उम्मत का तसव्वुर पैदा करने के साथ लोगों के अंदर ये शऊर का पैदा करना, जो इस बात का हम सब दावा करते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हमारा कलमा एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा नबी एक है, हमारा दीन एक है, हमारा इस्लाम एक है। सिर्फ दुआ कर दो अल्लाह हम सबको एक कर दे। मेरे वाजिब एहतराम भाइयों, कश्मीर के हवाले से गुजारिश है कि आज मसला कश्मीर का मसला नहीं है, मसला सिर्फ लफ्ज़ कुरान की हद तक नहीं। अब देखिए हमारा मसला ये हर चीज़ जो है हमारे ईमान का मसला है, ईमान का मसला। अगर खित्ते का मसला होता तो शायद इस पर सौदेबाजी हो सकती। दुनिया के अंदर विरासत समझ के इसको छोड़ दिया जाता है। जब हमने इस बात के लिए नारा बुलंद किया, कश्मीरियों के साथ रिश्ता किया, कश्मीरियों से रिश्ता किया, सबसे बड़ा दुनिया के अंदर कोई रिश्ता है तो वो ईमान का रिश्ता है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा रिश्ता है तो इस्लाम का रिश्ता है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा रिश्ता वो तौहीद का रिश्ता है, वो सबसे बड़ा रिश्ता वो हमारा रिसालत का रिश्ता है, वो उनके साथ हमारे कलमे का रिश्ता है। वो सिर्फ पानियों का मसला नहीं है, सिर्फ हमारी शरक का मसला नहीं है, सिर्फ हमारे खित्ते का मसला नहीं है, सिर्फ मुल्कों का मसला नहीं है, फिर तकसीम का मसला नहीं है। अगर किताबुल्लाह का मसला, हमारे ईमान का मसला, अगर नबी के रिसालत का मसला, हमारे ईमान का मसला, अगर कश्मीर का मसला, हमारे ईमान का मसला, अगर बैतुल्लाह का मसला, हमारे ईमान का मसला, जब हमने ये नारा बुलंद किया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ये मुल्कों के मसले नहीं। आज दुनिया के अंदर हमारा जुर्म पाकिस्तानी होना नहीं है, दुनिया के अंदर किसी का जुर्म फलस्तीनी होना नहीं है, दुनिया के अंदर किसी का जुर्म वो कश्मीरी होना नहीं है। अगर दुनिया के अंदर हम सब का जुर्म है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ना है। रब्बे काबा की कसम, इस रिश्ते को निभाने के लिए, अल्लाह की कसम, इसको देखिए इस वफा के लिए हमें दुनिया के अंदर जो भी कीमत अदा करनी पड़े, रब्बे काबा की कसम हम तैयार हैं इस कीमत अदा करने के लिए। सिर्फ ये जान क्या है, मैं वही जुमला कहता हूँ जो सहाबी रसूल ने कहा था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिस वक़्त वो तेल में गिरने से पहले उसकी आंखों में आंसू आए तो देखिए उस ईसाई सलीबी बादशाह ने पूछा तो तू तो बहुत डटा हुआ था, ना तुझे तीरों तलवार की परवाह, ना तुझे देखे इस बात की परवाह, ना तू इस बात को खातर में लाने वाला, ना तू दौलत को खातर में लाने वाला, ना तू
बनाने वाला आज किस बात पे रो दिया? उसने कहा रोना मेरी जान का रोना नहीं है, रोना मेरा दुनिया का छोड़ना रोना नहीं है, मेरा रोना इस बात के लिए नहीं है, मेरा तेल में गिरना मसला नहीं है, मैं तो इस बात पे रो रहा हूं कि सिर्फ एक जान कुर्बान करके अल्लाह के सामने पेश किया जाऊंगा। मैं किस मुंह से अल्लाह के सामने खड़ा किया जाऊंगा? मैं चाहता था जितने जिस्म पर बाल है मुझे उसकी अल्लाह जाने दे देता, मैं एक एक करके अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करता। मैं भी कह सकता कि अल्लाह मैं तेरे रास्ते के अंदर कुर्बानी दे के आया हूँ। हम देखें इसी वफा के लिए, वो किताबुल्लाह का मसला हो, वो खत्म नबूवत का मसला हो, वो कश्मीर का मसला हो, देखिए माल और वफा की दुनिया के अंदर, ये आवाज के उठाने की दुनिया के अंदर सिर्फ इतनी बार नहीं, वो कुर्बानी आवाज के साथ हो, वो माल के साथ हो, वो जान के साथ हो। अल्लाह की कसम हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। और उसके साथ मैं वही बात करता हूं कि याद है कि तुम्हें कि आज वो कश्मीरी के जिस वक्त उसके देखिए सीने पर गोली तानी गई, उसने आर्मी के फौजी को सिर्फ इतनी बात कहते हुए उसने कहा जरा रुक जा, मुझे फायर करने से पहले उसने समझा शायद ये मदद करेगा, ये दौड़ेगा। उसने अपने बटन को खोलते हुए उसने उस वक्त ये जुमला कहा था, उसने कहा सुनने वालों, कलमा पढ़ने वालों, अगर मुझे हिट कर दिया जाए, मैं इस आज़ादी की कीमत पे कत्ल कर दिया जाऊं, तो तुम मेरे कत्ल पे कह देना आज़ादे, मेरा जनाजा उठे तो कह देना आज़ादे, जिस वक्त मुझे कफन दिया जाए तो कफन पे लिख देना आज़ादे, जिस वक्त मुझे कब्र में दफन किया जाए मेरी कब्र पे कह देना आज़ादे, जिस वक्त पलट के मेरे बच्चों के अंदर कह दो उनको भी कह देना आज़ादे। आज हमने वो दुनिया के अंदर जीने वालों, मैं कितने उन कश्मीरियों को साथी तौर पर जानता हूँ, शहादत के वक्त सिर्फ इतना जुमला कह गए कि हमें बतौर अमानत जमीन के अंदर दफन कर देना, जिस वक्त कल ये कश्मीर आजाद हो जाएगा हमें निकाल कर जमीन के अंदर दफन करना। हमने वफाओं के लिए ये देखे इस वफा का सबूत दिया है। आपको याद होगा अली गिलानी, उसमें अल्लाह करोड़ रहमत करे, वो बुरा शख्स जो 80 साल से ज्यादा उम्र रखने वाला, जिसने दुनिया के अंदर वो अपनी जवानी को गुजारा तो सलाखों के पीछे, अपने बुढ़ापे को गुजारा तो सलाखों के पीछे, अपनी बीमारी को गुजारा तो सलाखों के पीछे, दुनिया फानी को छोड़ने से पहले उस शख्स ने सिर्फ इतना जुमला कहा, उसने कहा कि जिस वक्त मेरे कफन दिया जाए तो वो कफन पर भी लिख देना कि देखिए पाकिस्तान के साथ रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने कहा मेरा जनाजा उठे तो तुम ये जुमला कह देना कि देखिए पाकिस्तान के साथ रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। साथ ये जुमला कहा कि लोगों जिस वक्त मेरा जनाजा उठेगा उस वक्त भी ये ऐलान कर देना और शख्स का ये जुमला कह देना कि देखिए पाकिस्तान के साथ हमारा जो रिश्ता है ईमान की वजह से, इस्लाम की वजह से, इस्लाम की वजह से पाकिस्तान के साथ रिश्ते का ऐलान करते हुए उसने कहा कि देखिए पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं। उसके जवाब के अंदर प्रोफेसर हाफिज सईद हाफिजुल्लाह ने, मेरे अमीर ने यह जुमला कहा, इस्लाम की वजह से, ईमान की वजह से हम कश्मीरी हैं, कश्मीर हमारा है। उसकी जगह पे अगर मुसल्लत आलम ने 5 लाख लोगों को खड़ा करके जिस वक्त इंडियन फौज के सामने सीना तान के जब उसने कहा था जो पाकिस्तानी बच्चों को लहराएगा उसको हेड कर दिया जाए, जो वहां पर खड़ा हो उसको हेड कर दिया जाए, जो कहे पाकिस्तान से रिश्ता किया उसको हेड कर दिया जाए, जो कहे कश्मीरियों से रिश्ता किया हेड कर दिया जाए। उसने देखिए इस बात पे वो परचम लहराते हुए यह जुमला कहा था कि पाकिस्तान के साथ रिश्ता किया, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने ये जुमला कहा था कि हाफिज सईद का क्या पैगाम, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, आज नहीं तो कल। रब्बे काबा की कसम वो वक्त आएगा कि जिस वक्त कश्मीर क्या बनेगा, पाकिस्तान बनेगा। मेरी बात दोबारा से सुनते हुए मेरे भाई,
शायद आज दुश्मन को ये समझने में गलती लगी है, मैं भी आपकी तरह दुनिया के अंदर आज वो बगले बजाता हुआ इंडिया इस खुशफहमी के अंदर है। हमारे अंदरूनी मुल्क की खलफशारी की वजह से, हमारे इन मसाइल की वजह से उसको बड़ी खुशी है। और बिलखसूस मोदी और उसका वजीर दाखिला और आए दिन उनका ये ख्वाब देखना और ये जुमला कहना कि देखिए आज तुम कश्मीर की बात करते हो, अगर हमसे बात करनी है जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हुए उस कश्मीर की बात करो, अगर हमसे बात करनी है तो गिलगित की बात करो, अगर हमसे बात करनी है तो सकर्दू की बात करो। सकर्दू तो दूर की बात है, अगर वो देखे ये तो दूर की बात है। मैं सिर्फ इतना जुमला कहना चाहता हूँ कि आज उसको इस बात की भूल हुई है, शायद उसको इस बात में समझने में गलती लगी हुई है। यकीनन हमारे अंदर मसाइल होंगे, लेकिन मसला कश्मीर हो, कश्मीर की आज़ादी हो या इंडिया की बर्बादी हो, इंशाअल्लाह ये कौम एक है इंशाअल्लाह। मेरे भाई, उस वक्त ना हमारा मसला का मसला, ना हमारा कोई सियासी मसला, ना हमारा कोई बरादरियों का मसला, इस मुल्क के दिफा के लिए, इस्लाम के दिफा के लिए, किताबुल्लाह के दिफा के लिए दुआ ही कर दो। मैं चाहता हूँ जिस तरह अल्लाह ने आज इस मुल्क के अंदर एक खैर की बात कहने लगा, पूरी दुनिया के कुफर पर जो परेशानी वो किया है, जहां पर इस मुल्क के अंदर जो शख्स किताबुल्लाह की बेहुरमती करता है या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता है, मैं इस पर मसाले नहीं, आपके जहन में बहुत सारी बातें आएंगी। वो 24 घंटे से पहले या इस मुल्क में नहीं होता या अल्लाह की ज़मीन पर नहीं होता। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होगा, अल्लाह की कसम वो वक्त आने को है, ये पूरी दुनिया के अंदर यही माहौल होगा इंशाअल्लाह। मेरे भाई, ये कोई देखिए मजाक तो नहीं दुनिया के अंदर कि जो उठे वो जो हमारे कुरान को जला दे, जो उठे हमारे नबी की गुस्ताखी करे। मैं वही जुमला कहना चाहता हूँ जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने कहा था। किसी ने पूछा कि अगर नबी की गुस्ताखी हो जाए तो क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा करना क्या है, फिर जी के क्या करना है, करना क्या है, फिर जी के क्या करना है। और मेरा भाई, हमारी जिंदगियों के अंदर अगर कश्मीर चला गया तो हमने जी के क्या करना है? अगर हमारी जिंदगी के अंदर हमारे नबी की गुस्ताखी हो जाए, हमने जी के क्या करना है? और अगर हमारी जिंदगियों के अंदर किताबुल्लाह की बेहुरमती हो जाए, हमने जिंदा रह के क्या करना है? फिर तो जमीन के ऊपर वाले हिस्से से अल्लाह की कसम जमीन के नीचे वाला हिस्सा बेहतर है। सिर्फ बेहतर नहीं कि कब्रों में चले गए। ये सिर्फ वो दुनिया के ऊपर क्या समझता है, सिर्फ 5 फरवरी के हद तक, सिर्फ ये एक प्रेस क्लब की हवा तक। हमने इसके जरिए कोई आवाज पहुंचाना चाहते हैं, न उनसे कोई दरखास्त करना चाहते हैं, न उनसे हम अपील करना चाहते हैं। मैं तो अपनों से दरखास्त करता हूँ, आइए उनको छोड़िए, अपनी सफों के अंदर हम इत्तेहाद पैदा करें, और हम किताबों सुन्नत पर मिलकर खड़े हो। और बात खत्म करते हुए सिर्फ इतना कहता हूं जो किसी ने कहा था, ये भीख नहीं आज़ादी है, ये मांगी नहीं जाती, ये छीनी जाती है। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा, अल्लाह के फजल से ये कश्मीर भी आज़ाद होगा, इंडिया भी बर्बाद होगा, और दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर नहीं, अल्लाह की ज़मीन पर बालादस्ती होगी तो किताब व सुन्नत की होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। इलाहुल आलमीन, जहाँ भी मुसलमान गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं उन्हें आज़ादी नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन, कश्मीरी मुसलमान 75 साल से कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अल्लाह उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमा कर उन्हें आज़ादी नसीब फरमा। फ़िलिस्तीन के मुसलमानों को आज़ादी अता फरमा।
अल्लाह अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम नसीब फरमा। जितने खलीजी ममालिक में अदम इस्तेहकाम है अल्लाह उन्हें इस्तेहकाम नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन पाकिस्तान की गुयूर मुसलमानों को हिम्मत अता फरमा कि ये भी IMF और दीगर इदारों से आज़ादी हासिल करें। इलाहुल आलमीन मुसलमान जहाँ की आबाद हैं उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू ईमान की हिफाजत फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही।